Hello student, today we are going to learn next problem number 11 and textbook problem number 14. Okay. Uh, Remember in this problem we learn outstanding expenses as well as outstanding income related. Okay. That one problem is related to Mahila Mandal. Here in that problem they given old balance sheet and as well as receipt and payment account. Okay. Important we learn in this problem is related to outstanding expenses, previous year outstanding expenses, and as well as current year outstanding expenses that can be handled in this problem, and as well as subscription for previous year and as well as next year what related to that one things. Okay, that can be we learn in this chapter. When you okay, see, we learn this one problem. That's why you open your textbook, page number 97, problem number 14, and check all problem first and then adjustments. Okay, I'll explain simultaneously what is exact we completed in that problem. See, first here they given old balance sheet of Mahila Ashram issued by Mahila Mandal on 1st April 2018, receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. Here accounting year is the 1st April 2018 to 31st March 2019 previous year. Okay. And current year we consider here 1st April 2018 to 31st March 2019. Okay. See, I'll read problem one by one and explain all those things. Here they given first one balance capital fund. So we need not to calculate again capital fund because in the last problem we find out capital fund amount using old balance sheet. Already here they given old balance sheet. That's why need not to find separately capital fund. And how to can find out capital fund amount? Yes, कैपिटल फंड की अमाउंट अगर हमें कैलकुलेट करनी तो कैसे कैलकुलेट की जाती है? ओके, सो दिस फॉर्मूला इज व्हाट ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, देन वी गॉट कैपिटल फंड अमाउंट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी हाउ टू कैलकुलेट? अगर उन्होंने प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो दैट टाइम हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल फंड. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल फंड, याद रखो. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. हियर गिवन आउटस्टैंडिंग expenses everybody knows salary, rent and as well as stationery. Outstanding expenses they given here. Okay, means previous year के ये क्या है expenses outstanding है. प्रीवियस ईयर के ये एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग है. इसके बारे में एक बात याद रखो, अगर प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो बैलेंसेस हम लेस करेंगे हमारे जो भी एक्सपेंसेस है उसमें से. ये नोट डाउन करके रखो. जो भी अगर आपके ओल्ड बैलेंस शीट में आपको प्रीवियस ईयर के भी क्या दिए हैं, ओल्ड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, कोई भी एक्सपेंसेस हो, तो हमें क्या करना है? लेस. आज तक हम क्या करते थे? करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा, याद रहेगा सबको. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड, बट अगर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगा? दैट वन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंसेस. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, I'll read continuously. Cash in hand and cash at bank is the opening balances. Okay, brought down balances on 1st April, so we are not recorded anywhere because it's opening balances. At the final
At the final, we recorded closing balance only, cash at bank and cash in hand. Next one, furniture. Furniture opening balance rupees 20,000. Outstanding subscription here. Subscription means receivable amount, because it's a Mahila Mandal, na? So that's why members paying some amount. That amount is known as a subscription, na? To run or execute that particular form or continue their membership. So subscription amount, outstanding subscription for previous year is what? 8,500. How many? 8,500. याद रखो, ये भी जरूरी है यहाँ पे. प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 8,500. यहाँ पे फोकस करो. क्या फोकस करना है? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 8,500. याद रहेगा सबको? ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है. इन्वेस्टमेंट. क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड, बिफोर दैट इन्वेस्टमेंट दे गिवन परसेंटेज. ऑलवेज रिमेंबर इन अ फाइनल अकाउंट ऑल्सो हम सॉल्व करते थे दैट लाइक एडजस्टमेंट. ऐसे एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते थे. इसे हमने हिडन एडजस्टमेंट नाम दिया था. क्यों दिया था? क्योंकि उसके आगे क्या दिया है? परसेंटेज. कोई भी हो, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या गवर्नमेंट लोन हो या डिबेंचर्स हो या कोई सिक्योरिटीज हो, उसके सामने अगर क्या दे के आते? परसेंटेज दे के आते, तो कंपलसरी यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. और लोन भी हो सकता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट कंपलसरी इंटरेस्ट ऑन दैट. सो यहाँ पे दिए है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के आगे 6% दिए, मीन्स हियर वी कैलकुलेट 6% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. आगे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, कितने मंथ के लिए करना है या पूरे साल के लिए करना है. जस्ट अब याद रखना है कि हमें क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कंफर्म? ये छोटे छोटे जो भी कंसेप्ट है वो कहीं पे नोट डाउन करके रखो. ये आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ही, तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये नोट डाउन करके रखो. ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही आगे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. ओके, अब तक मैंने क्या क्या बताया, आपको क्या क्या याद रखना है? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में याद रखना है, और दूसरी बात क्या है? रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो 8,500. एंड थर्ड वन बताया मैंने, अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ के सामने क्या दी जाता है? परसेंटेज दिया जाता है, तो हाउ टू कैलकुलेट. ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ये तीनों बातें हमें आज प्रॉपरली देखनी है. ठीक है, देन मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ. ये ओल्ड बैलेंस शीट थी. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं. उस महिला मंडल का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया है. तो देखते हैं, पहला वाला बैलेंस दिया है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड रुपीज़ 3,000, कैश एट बैंक रुपीज़ 8,000, एंट्रेंस फीस रुपीज़ 28,000. एंट्रेंस फीस मतलब क्या है? एंट्रेंस फीस मतलब, इसके पहले भी मैंने बताया था, एंट्रेंस फीस मतलब क्या है. तो एंट्रेंस फीस मतलब इस टाइप के रिसीट है या इनकम है उस फर्म के लिए जो उन्हें मिलते हैं. ओके, किस पर्पस के लिए मिलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रेंस फीस? मीनिंग ऑफ एंट्रेंस फीस नोट डाउन करके रखो. एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय पर्सन who intend to become a member of an organization or concern. याद रहेगा, एंट्रेंस फीस मतलब क्या है? एंट्रेंस फीस आर दोज फीस पेड बाय पर्सन टू intend to become a member of organization. मीन्स अगर वो जब मेंबर होता है तो उस टाइम वो क्या करता है? एंट्री टाइम
फीस पे करता है तो दैट फीस इज नोन एज एंट्रेंस फीस। एंड एज वेल एज ये भी याद रखो, एंट्रेंस फीस ऑलवेज क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है। ये भी याद रखो, क्या है, एंट्रेंस फीस आ रेवेन्यू रिसीट। अंडरस्टूड एवरीबडी, कंफर्म। नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो अभी सबको पता ही होगा, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन भी क्या है, रेवेन्यू इनकम है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए। सब्सक्रिप्शन में भी गिवन बाय पीरियडिकली हो सकता है या पीरियडिकली होता है, तो पीरियडिकली मतलब मंथली, 6 मंथली या ईयरली या लाइफ टाइम, whatever. All member have to pay subscription regularly and it credited to income and expenditure account. Okay. मेंबरशिप फीस मतलब, सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ पे उनकी मेंबरशिप फीस है, वो पे करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2000, यहाँ पे रिसीट है, तो रिसीट मतलब हमें ये सारी अमाउंट रिसीट हुए, कहाँ पे दिख रहा है साहब भैया बैलेंसेस, रिसीट साइड। तो रिसीट साइड में वॉट एवर बैलेंस वी सी दैट ऑल आर रिसीव्ड अमाउंट, नॉट अ रिसीवेबल, इज व्हाट, रिसीव्ड अमाउंट, मिले हुए पैसे हमें। ओके तो 2017-18 के हमें कितने रुपीस मिले हैं, 2000 मिले। मैंने बताया था लास्ट, जब मैंने ओल्ड बैलेंस शीट के बारे में बता रही थी तो वहाँ पे बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 का कितना दिखा रहा था, 8500, याद होगा। या फिर से अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओल्ड बैलेंस शीट में जाके देखो, मैं यहाँ पे आपको ओल्ड बैलेंस शीट फिर से दिखा रही हूँ। सी हियर, ओके यहाँ पे ये जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कब का है, 2017-18। उसमें से अभी हमें कितने रुपीज़ रिसीव हुए, कितने रिसीव हुए, वी रिसीव्ड 2000, हाउ मेनी, 2000, वी रिसीव्ड अमाउंट 2000 फॉर 2017-18 के। अंडरस्टूड एवरीबडी, सिर्फ याद रखो, बाद में एक वन बाय वन सॉल्व करते। The next one, the balance given 2018-19, 45,000 is a current year subscription. We received 45,000. 2018-19 is a current year. तो current year के हमें received amount है 45,000. 19-20 is a next year. That subscription amount we received in advance rupees 3,000. याद रखो ये advance में पैसे हमें मिले हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स 2019-20 के लिए कितने थे, 3000 एडवांस में मिली है। देन नेक्स्ट बैलेंस दिया गया है उन्हें, मिसलिनियस रिसीट्स मतलब ये ऑल टाइप ऑफ रिसीट या इनकम, कंबाइनली इनकम वो लिख लेते हैं, अलग अलग नहीं समराइज करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक ही अमाउंट दी जाती है और दैट इज व्हाट सम मिसलिनियस रिसीट रुपीज़ 5000, तो वो भी इनकम है। इनकम साइड, रिसीट साइड के सारे जितने भी बैलेंस है वो सारे हमारे इनकम है, एक छोड़ के 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये छोड़ के बाकी सारे क्या है, इनकम है। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट साइड। फर्स्ट बैलेंस दे गिवन रेंट, रेंट दिया है यहाँ पे 25,000, रेंट दिखा आपको इज व्हाट 25,000। नेक्स्ट वन दिया है स्टेशनरी, देखो रेंट के बारे में भी आउटस्टैंडिंग दिया था ओल्ड एडजस्टमेंट में। स्टेशनरी रुपीज़ 3000, सैलरी रुपीज़ 22,000, रेंट, स्टेशनरी, सैलरी ये सारे एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बाय फर्नीचर रिपेयर्स, फर्नीचर रिपेयर्स कितना है, देखो फर्नीचर रिपेयर किया है, एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। अमाउंटेड रुपीज़ 1800। ऑनरियम टू सेक्रेटरी, क्या ऑनरियम टू सेक्रेटरी मतलब यहाँ पे क्या है, तो दैट वन इज व्हाट रेम्यूनरेशन पेड टू सेक्रेटरी, रेम्यूनरेशन दिया है सेक्रेटरी को, दैट वन, तो यहाँ पे तो वेजेस नहीं लिखेंगे या सैलरी नहीं लिखेंगे, स्पेसिफिक रेम्यूनरेशन दिया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑनरियम वर्ड आया है। तो दैट वन अमाउंट इज व्हाट 16,000, कितना है 16, एक्सपेंसेस है हमें, सो दैट्स वाई कहाँ पे लिखेंगे
डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. देन मिसलिनियस एक्सपेंसेस मीन्स ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ₹2000, वो भी एक्सपेंसेस, दैट्स वाई वही पे जाएंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देन नेक्स्ट वन द गिवन बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, सो दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड एसेट साइड. सिर्फ ये पेमेंट में एक ही बैलेंस कहाँ पे गया, एसेट साइड, बाकी सारे बैलेंसेस हमारे कहाँ पे थे, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. ठीक है, देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट क्या क्या दिए है. फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है रेंट फॉर लास्ट 2 month ₹5000 स्टिल ड्यू. स्टिल ड्यू इसी का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है. अभी यहाँ पे रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है. कितने रुपीज आउटस्टैंडिंग है, ₹5000 आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग उसी का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ही होता है. ओके, लास्ट ईयर के क्या है 2000 आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के अंडर ऐड. ओके, कि आउटस्टैंडिंग है तो दिखाना होगा ना रेंट इस ईयर का है, दैट्स वाई इस ईयर की सारी अकाउंटिंग करते तो इसके अंदर ऐड होगा. और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अभी तक हमने वो पे किया क्या, नहीं किए, तो वो पेबल अमाउंट है. तो पेबल अमाउंट हम कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड. कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी. याद रखो ये स्टूडेंट, अगर वो अमाउंट क्या है, पेबल है, मतलब अभी तक नहीं दी है, तो दैट कैन बी कंसिडर एज अ लायबिलिटी. तो दैट्स वाई उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड. देन नेक्स्ट वन, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल ऑन 31st March 2019 वेयर ₹450. कितने रुपीस आउटस्टैंडिंग है, पेबल लिखा है. स्टिल क्या है, अभी तक 31 मार्च हो गया, तो हो गया तभी तक दिया नहीं है, तो अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है. सैलरी भी क्या है, सॉरी स्टेशनरी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है 450. तो उसका भी सेम इफेक्ट होगा. पहला वाला इफेक्ट कहाँ पे होगा, उस पर्टिकुलर स्टेशनरी के अंदर ऐड, और दूसरा एक्सपेंसेस पेबल है, दैट्स वाई लायबिलिटी साइड. कहाँ पे, लायबिलिटी साइड. ओके, कंफर्म एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ₹3000. सो वेयर वी रिकॉर्डेड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कहाँ पे लिखते हैं हम, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, दैट्स वाई उस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड. और दूसरा वाला एक्सपेंसेस ये रिसीवेबल अमाउंट है. रिसीवेबल अमाउंट है मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुई है, रिसीव्ड होने वाली है इन फ्यूचर में, तो दैट्स वाई उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड. अगर पेबल अमाउंट है मतलब अभी तक अभी तक हमने नहीं दी है, पेबल मतलब अभी तक हमने नहीं दी है, तो लायबिलिटी साइड. एंड रिसीवेबल मतलब अभी तक हमें रिसीव्ड नहीं हुई है, तो दैट कैन बी रिकॉर्डेड एसेट साइड. अंडरस्टूड. ओके, द नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. पूरी की पूरी अमाउंट एंट्रेंस फीस की क्या हो रही है, कैपिटलाइज हो रही है, तो दैट्स वाई इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, ओके, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस. एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, कैपिटल फंड के अंदर ऐड. कैपिटल फंड के अंदर यार, इसका मतलब होता है कि उन्होंने जो भी एंट्रेंस फीस उनके पास कलेक्ट हुई थी वो सारी उन्होंने कैपिटल एज अ कैपिटल ऐसे कंसिडर किए या कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर की है. द नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम. कितने हो रहे, 10% पर एनम हो रहे. तो डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ओपनिंग बैलेंस ही दिया फर्नीचर का, दैट्स वाई फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की अमाउंट 20,000 थी, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% कितना होगा, 2000 होगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी. देखो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने बताई, फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने क्या बताई है, यहाँ पे स्टिल ड्यू है, इसी का मतलब क्या है, स्टिल ड्यू है, इसी का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, या
पेबल है तो उसे तो भी उसका मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक नहीं दिए हमने पैसे। तो पहले वाला एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा, उस रेंट में ऐड, एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड। स्टेशनरी के लिए भी सेम एज इट इज, स्टेशनरी के लिए ऐड एंड द सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब वो क्या है, अमाउंट रिसीवेबल है। इनकम आउटस्टैंडिंग है, क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो उस सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। फोर्थ, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड के अंदर ऐड। फिफ्थ, डेप्रिसिएट फर्नीचर, मीन्स फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है तो लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन मीन्स एक्सपेंसेस, दैट्स वाई एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, मतलब एक्सपेंसेस साइड। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देखते हैं सॉल्यूशन अभी। सॉल्यूशन में देखो, रेंट है 25,000, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18। देखो हमारी जो भी ओल्ड बैलेंस शीट थी, उस ओल्ड बैलेंस शीट में क्या दिए थे, बैलेंसेस दिए थे, दिखाती हूँ ओल्ड बैलेंस शीट। देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा लेते, सैलरी है 8,000, रेंट है 7,000 एंड स्टेशनरी है ₹1,000। तो ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर मतलब 2017-18 के हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था, अगर प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हमें दिखेंगे वो क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में से लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के 2017-18 के आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस होगी। ओके, और फर्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी लास्ट 2 मंथ्स के लिए, क्या वो 5,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग थे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे किया है, 5,000 रुपीज़ क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यह हो गया फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एज लायबिलिटी साइड, कहाँ पे, लायबिलिटी साइड। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट पोस्टिंग देखते हैं। बाद में क्या है, उन्होंने लेस करके आउटर, देखो 25,000 थे, उसमें इसमें 7,000 लेस किए प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, तो 18,000 बैलेंस हो गया। फिर उसमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया तो 5,000 ऐड, देन आउटर कॉलम में टोटल होगी 23,000। नेक्स्ट टू स्टेशनरी देखते हैं। स्टेशनरी के बारे में, स्टेशनरी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि उसमें उसका भी प्रीवियस ईयर का क्या था, आउटस्टैंडिंग था, सो दैट्स वाई वी लेस देयर इज वन अमाउंट ₹1,000 एंड सेकेंड एडजस्टमेंट द गिवन स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल ऑन 31st March 2019 वे ₹450। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऐड होगा, दिखा, ये प्रीवियस ईयर का लेस किया हमने एंड एक करंट ईयर क्या क्या किया हमने, ऐड किया। ये थी हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट। उसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, स्टेशनरी ₹450, आउटस्टैंडिंग कितनी है, 450, ये रही उसकी अमाउंट। अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। सैलरी सिर्फ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग थी, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, सो डायरेक्टली लिखेंगे प्रीवियस ईयर है तो लेस होगा,
8,000 रुपीज़ एंड आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 14,000. देन फर्नीचर रिपेयर्स एक्सपेंसेस है 1,800. ऑनरियम टू सेक्रेटरी मीन्स रेम्यूनरेशन टू सेक्रेटरी, रेम्यूनरेशन ऑफ सेक्रेटरी ₹16,000. आउटर कॉलम एक्सपेंसेस है मिसलिनियस एक्सपेंसेस 2,000. ओके. डेप्रिसिएशन किया कैलकुलेट, लास्ट वन एडजस्टमेंट बाद में देखते हैं, लास्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. एंट्रेंस फीस क्या है वो लिखिए इनर कॉलम में, सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में, मिसलिनियस आउटर रिसीट आउटर कॉलम में. ओके. एंड देखते हैं अभी एडजस्टमेंट वन बाय वन. ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹5,000. सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है तो वो सेकेंड एडजस्टमेंट. थर्ड एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹3,000. ये है थर्ड एडजस्टमेंट. ओके. उसका करंट ईयर सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है, ये थी हमारी थर्ड एडजस्टमेंट. उसका पहला इफेक्ट यहाँ पे हो गया. दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड ₹3,000. ये थी हमारी थर्ड एडजस्टमेंट. क्लियर एवरीबॉडी, कंफर्म. ठीक है. फोर्थ वन एडजस्टमेंट था. फोर्थ वन एडजस्टमेंट क्या है, ऑल होल एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. तो एंट्रेंस फीस को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है तो होल अमाउंट जाएगी कैपिटल के अंदर तो लेस, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, कैपिटल फंड के अंदर ऐड, कैपिटल फंड के अंदर ऐड. ओके. क्लियर एवरीबॉडी. फोर्थ वन एडजस्टमेंट. लास्ट वन एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 20,000 के ऊपर 10%. तो 20,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 2,000. 20,000 के ऊपर 10% 2,000, आउटर में 18,000. और दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसिव, दैट्स वाई दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹2,000. सबको पता चला. ओके. सारे इफेक्ट पता चले. अभी इस अकाउंट में मेरे सारे इफेक्ट लिखती, फर्स्ट वन इफेक्ट सारे लिखती पहले एडजस्टमेंट के. ओके. फर्स्ट एडजस्टमेंट थी रेंट आउटस्टैंडिंग तो उसका ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. नेक्स्ट वन है स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग का ये मतलब सेकेंड एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट. थर्ड एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थर्ड. फोर्थ है एंट्रेंस फीस क्या हो रहा है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो रही है. तो ये है फोर्थ एडजस्टमेंट. एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. अंडरस्टूड. यहाँ पे ये है फर्स्ट एडजस्टमेंट, बाद में सेकेंड एडजस्टमेंट, बाद में ये है थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट एंड ये है फिफ्थ एडजस्टमेंट. ओके. ये था यहाँ पे. देन बैलेंस शीट में फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट एंड फिफ्थ वन. ओके. अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म. ठीक है.
हो गया, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, कुछ भी पेंडिंग है यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल कोई अमाउंट अभी यहाँ पे पेंडिंग है। देखो अभी क्या है, पेंडिंग है, हिडन एडजस्टमेंट पेंडिंग है। तो 6,500 इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी, 6,500, उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करने हैं 10%। कितने कैलकुलेट करने हैं, 10% फॉर 6,500 के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करने हैं। ओके, फॉर होल ईयर। तो कितनी अमाउंट आ रहा है, अमाउंट आ रही है, इंटरेस्ट ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स वाई ऐड होगा, ऐड अमाउंट है 390। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे हो गया, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें पैसे मिलते हैं, रिसीव्ड अमाउंट है, सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, हिडन एडजस्टमेंट, सेकेंड इफेक्ट